Welcome to Roshi's Education Point. We are studying chapter number 6 of History textbook class 6. This is the part 2 of this chapter. For part 1, click on the link given in the description box. So now let's get started with the topic, the Sangh. Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. अब महावीर और बुद्धा दोनों का ये मानना था कि जब आप अपना घर छोड़ोगे उसी के बाद आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी. They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. तो इन्होंने लोगों के लिए संघ बनाने शुरू करे. जो लोग अपना घर छोड़कर आते थे वो यहाँ पर रुक जाते थे. The rules made for the Buddhist Sangh were written down in a book called the Vinaya Pitaka. अब ये एक बुक है जिसके अंदर बुद्धिस्ट ने संघ के रूल्स लिख लिए थे. From this we know that there were separate branches for men and women. Men and women के लिए अलग अलग जगह थी. All men could join the संघ. सारे जो men हैं वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. अगर आप बच्चे हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन, और अगर आप स्लेव हो तो आपको अपने मालिक की परमिशन लेकर ही यहाँ पर आना है. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. जो राजा के अंडर में काम करते हैं उन्हें राजा से परमिशन लेनी है, और जो किसी से कर्जा लेकर बैठे हैं उन्हें उस कर्जदार की परमिशन लेनी है. Women had to take their husband's permission. वुमेन्स को उनके हस्बैंड की परमिशन लेनी है. इसका मतलब बिना किसी की परमिशन लिए आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो. Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. ये दिन भर तो मेडिटेट करते थे और फिक्स टाइम पर ये खाना मांगने के लिए सिटीज़ या विलेजेस के अंदर जाते थे. That is why they were known as bhikshus, the Prakrit word for renouncer, beggar. Beggar जो भिखारी होते हैं, and bhikkhunis. इन्हें भिखारी, भिक्षुस किसी भी नाम से हम लोग बोल सकते हैं. They taught others and helped one another. ये एक दूसरे को सिखाते थे और उनकी मदद भी करते थे. They also held meetings to settle any quarrel that took place within the संघ. अब जहाँ संघ में इतने अलग अलग लोग रहेंगे कुछ न कुछ लड़ाइयाँ तो होती हैं, तो ये मीटिंग्स बिठाते थे ताकि उन लड़ाइयों को सॉल्व भी करवा सकें. Those who joined the संघ included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. बहुत से लोगों ने तो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उन्हें लिखना भी शुरू कर दिया था. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघ. संघ में उनकी लाइफ किस तरह की है उसे डिस्क्राइब करते हुए कुछ लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी थी. Then comes monasteries. To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. अब ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जैन और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स हैं वो एक जगह पर नहीं रहते हैं. एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं और लोगों को सिखाते रहते हैं. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. पूरे साल में सिर्फ एक ही समय वो एक जगह पर रुकते थे, वो है रेनी सीजन, बारिश का मौसम, क्योंकि इस टाइम पर ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. अगर पहाड़ों में जाओगे तो नेचुरल गुफाएं वहाँ मिलती है रहने के लिए, और गार्डन्स में इनके जो फॉलोअर्स होते थे वो छोटा सा टेम्पररी शेल्टर इन लोगों के लिए बना देते थे. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. अब बहुत टाइम तो ऐसे ही निकल गया टेम्पररी शेल्टर के अंदर,
लेकिन फिर मॉन्क्स और नन्स ने इनको ज़रूरत फील हुई कि कुछ परमानेंट रहने की जगह तो फिर भी हमारी होनी चाहिए, और उस टाइम पर फिर इन्होंने ये मॉनेस्ट्रीज़ को बिल्ड किया था. These were known as viharas. The earliest viharas were made of wood and then of brick. विहारास इनके रहने की जगह को बोला जाता है. पहले लकड़ियों से बनाते थे और बाद में ईंटों से बनाते थे. ब्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. कुछ लोगों ने गुफाएं जान करके बनाई थी हिली एरियाज पे ताकि वो उसके अंदर रह सके. Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. अब जिस लैंड पर ये विहारा बनते थे वो लैंड कोई अमीर आदमी डोनेट करता था या फिर राजा डोनेट करवाता था. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. जो वहाँ के लोकल लोग होते थे वो खाना, कपड़े और मेडिसिन्स देने का काम करते थे. इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और बदले में ये लोग उन्हें पढ़ा देते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. बहुत से सेंचुरीज बाद बुद्धिज़्म फैलने लगा, बहुत से सब कॉन्टिनेंट्स तक ये पहुंच चुका था. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrams. अब ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जब बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे तो ब्राह्मण्स ने आश्रम्स बनाने का सिस्टम चालू कर दिया. Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. अब आश्रम वो जगह नहीं होती हैं जहाँ लोग रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं. It is used instead for a stage of life. 4 ashrams were recognized. एक इंसान की लाइफ को इन्होंने 4 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था. ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास. Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. ब्रह्मचार्य उस फेज ऑफ लाइफ को बोला जाता है जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के मैन पढ़ाई करते थे, वेदास को पढ़ते थे और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स. गृहस्थ. गृहस्थ उस स्टेज को बोला जाता है जहाँ आपकी शादी हो जाती है और आपको पूरा घर की जिम्मेदारी संभालनी होती है. फिर वनप्रस्थ होते हैं. देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. जब आपकी शादी हो गई, गृहस्थ कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको जंगलों में जाना होता है मेडिटेशन करने. उसे हम वनप्रस्थ बोलते हैं. फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज. लास्ट में जब आप सब कुछ कर चुके हो तो आपको सब कुछ छोड़ देना है और सन्यासीज बन जाना है. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन. अभी जो आश्रम्स का सिस्टम था ये अलाउ करता था मैन को कि आप अपने लाइफ का कुछ पार्ट मेडिटेशन में ही निकालेंगे. जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चोजन बाय देयर हस्बैंड्स. अब वुमेन्स को तो वेद पढ़ने की इजाज़त होती नहीं थी, तो जो उनके हस्बैंड ने उनके लिए आश्रम चूज़ करे हैं वुमेन्स को उसी में जाके रहना पड़ता था. This was all about your chapter number 6. Thank you so much.